when the Bari Institute was established and what was the main purpose of establishing the Bari Institute? Bismillahirrahmanirrahim. Barani Agriculture Research Institute Chakwal was established in 1979. The main purpose for the establishment of this institute was to tackle the issues related to farming communities in the Potohar region and to address the issues related to rain-fed agriculture. For this purpose, the Barani Agriculture Research Institute was established. Actually, the agriculture in rain-fed zone is totally dependent upon rains. There is no irrigation system like canal system as provided in the rest of the Punjab. So there was the great need to establish such an institute which will address the issues related to crop productivity, yield enhancement, water deficiency. For all these purposes, Barani Agriculture Research Institute was established in 1979. Can you please tell us how Bari Institute addresses the farming challenges in Potohar region and what are the recent achievements of Bari Institute? Okay, Barani Agriculture Research Institute, the main objective of this institute was to develop crop varieties to enhance the crop productivity. Barani Institute Chakwal is a multi-crop and multidisciplinary institute. We develop varieties for wheat, groundnut and oilseed, pulses, vegetables, and we also develop varieties of the different fruit crops also, including high value agriculture, peach, grapes, pistachio, pecanut and avocado, etc. We also work on high efficiency irrigation system and developing various techniques to ensure the utilization of water to get maximum output using minimum amount of water. So till now, Barani Agriculture Research Institute Chakwal has developed more than 62 varieties of wheat, groundnut and oilseed, pulses and fruit crops. And other than these varieties, we also have developed various technologies to conserve soil moisture and for the maximum using efficiently irrigation system. And we are also working on the capacity building of the scientists and also different stakeholders of agriculture like extension, pest warning. We provide them training through workshops and seminars for the dissemination of agriculture achievements to the farming communities. We also provide technical assistance to the farmers so that they can have benefit from our research outcomes and they can get maximum output from their livelihood to improve their livelihood. We also provide capacity building facilities to the students from the universities in the form of research and internship programs. And recently we have achieved a remarkable achievement regarding olive propagation and olive dissemination in the region. This Potohar region has now become the center of excellence for the development of olive. We have developed Barani Agriculture Institute Chakwal has established a value chain regarding the olive production, olive propagation and introduction of olive is the great landmark for the Barani Agriculture Research Institute Chakwal. Secondly, we have recently introduced blackberry, which is a high value fruit crop, and in order to provide the farmers a short window to get the maximum amount of profit from the minimum piece of land. So Barani Agriculture Research Institute Chakwal is working day and night for the betterment of the farming community. How many research centers Barani Institute have in Potohar region? We have 6 substations. One is at Horticulture Research Substation at Murray,
and other one is horticulture research station in Son Valley. These two stations work on horticultural crops like avocado, pecanut, hazelnut, apple, and peach, grapes. And the other one, we have a breeding research institute, Barani Agriculture Research Station Fatehjang, and groundnut research station at Atak, which are working for the development of high yielding crop varieties of wheat, groundnut, and other crop like pulses, etc. Can you please tell us what are the future projects, or you can say projects are in pipeline by the Bar Institute? Government of Punjab has given approval to the project first time in the Potohar region, named as Agriculture Transformation in Potohar. This project is a multi-departmental project, and regarding the research wing, we Barani Agriculture Research Institute Chakwal, we have given the task for the development of early generation seed production of the groundnut, because seed is the major commodity and it is the main hurdle for the farmers to get the maximum yield. The availability of quality seed is very crucial to get the maximum output. So we are the scientists of Barani Agriculture Research Institute Chakwal, we will ensure the availability of the quality seed through the production of early generation seed. In this project, we will provide 25,000 basic seed to the farming community, where they will, and we will provide them services. And after that, after multiplication, that seed will be provided to the general farming community for cultivation. Other than groundnut, the other project we have, we have established different varieties that are suitable for the Potohar region regarding citrus crop, but we don't have the nursery infrastructure here. So in this project, we are going to develop the nursery infrastructure. For this purpose, we will develop tunnels and other infrastructure for the production of plants. We will provide 15,000 plants to the farmers in the form of model citrus farms. We will develop 25 model farms to the farmers in the 3 years to ensure the spread or dissemination of citrus varieties in this zone, Potohar region. And other than the citrus group, we are also working on high value agriculture. It includes blackberry, peach, grapes, and nectarine, fig. We will provide the plants to the farmers of these crops, because these crops we have completed R&D activities, and it has been established that these varieties can survive better in this region, and which can add to the income of the farmers. So we will provide 30,000 plants to the farmers in the 3 years. So this will also enhance the income capability of the farmers, because the land holding in this region is very low. The farmers have small land holdings. So we are working on high value agriculture so that farmer can get maximum out from the minimum piece of land. We are also, the two crops, we are also working for the adaptability studies like blueberry and raspberry. So this is all about the new initiatives approved by the government regarding the Barani Agriculture Research Institute Chakwal. In addition to this, we are also Barani Agriculture Research Institute Chakwal. In this project, it is also approved that the olive plants will be given to the farmers to grow on more than 3,000 acres in this region. So this is all about the project and all about the agriculture transformation project regarding the research wing.
आप हमें ये बताएंगे कि जो ऑलिव है उसके लिए बेहतरीन सॉइल और क्लाइमेट कौन सा है जिसमें जो है वो ऑलिव ट्रीज जो है उनको काश्त किया जा सकता है उनकी कल्टीवेशन के लिए? बेसिकली तो ऑलिव जो है वो मेडिटेरेनियन रीजन का प्लांट है, जहाँ का क्लाइमेट जो है वो कह लें कि जो विंटर है वहाँ पे प्लेंटी ऑफ रेनफॉल्स होती हैं, और समर जो है वो मानसून फ्री है, वहाँ पे बारिशें नहीं होती गर्मियों में। लेकिन हमारा जो पठवार का रीजन है इसमें थोड़ा सा हमें ये प्रॉब्लम इसमें आता है, यहाँ पे मानसून बहुत ज़्यादा है और जो विंटर रेनफॉल हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर होती हैं, तो उसकी वजह से हमें विंटर में पानी की उसमें ऑलिव की कमी, शदीद कमी आती है, जो कि फिर आगे जो नेक्स्ट ईयर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है उसको अफेक्ट करती है। सेकेंडली, जब हमारी मानसून ज़्यादा हो जाती हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम ये आता है कि वहाँ पे ह्यूमिड इन्वायरमेंट जब क्रिएट होता है तो फंगस और इस तरह की जो बीमारियाँ हैं उनका अटैक ज़्यादा होता है, स्पेशली वो वैराइटीज़ जो जल्दी राइपनिंग की तरफ जाती हैं। तो वो जो ही राइपनिंग की तरफ जाती हैं, अगर उन दिनों में ह्यूमिड इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे उन पे डिज़ीज़ एंथ्रेक्नोज एक डिज़ीज़ है, फंगल डिज़ीज़ है, वो आ जाती है, जिसकी वजह से फ्रूट ड्रॉपिंग ज़्यादा होती है, और इसके अलावा जो ऑयल क्वालिटी है उस पर काफ़ी असर पड़ता है और ऑयल की यील्ड जो है वो भी कम हो जाती है। तो ये इस तरह के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे थोड़ा सा इसको नेगेटिवली इफ़ेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो स्प्रिंग का गुज़श्ता 3-4 सालों से जो इसका फ्लावरिंग के दौरान टेम्परेचर है वो सडन राइज़ कर जाता है। इसको फ्लावरिंग और पोलिनेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए तकरीबन 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है वो इससे राइज़ कर जाता है, वो तकरीबन 33-35 तक चला जाता है, जो कि नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी फ्लावरिंग ड्रॉप जो है वो ज़्यादातर फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं। पोलिनेशन पे इफ़ेक्ट करती है, उसकी जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से शॉर्ट बेरीज डेवलप होती हैं और पुअर फ्रूट सेटिंग उसमें होती है। तो ये जो दो मेजर कंसंट्रेंट हैं, ये कह लें कि इन्वायरमेंटल कंसंट्रेंट हैं जो कि ऑलिव के प्रोडक्शन, यील्ड और क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। तो सर, पेस्ट्स एंड डिजीज़ को मैनेज करने के लिए कोई कौन से तरीके आप अपनाते हैं? हाँ, इसमें देखें कि इन्वायरमेंटल जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, बायोलॉजिकल तो किसी हद तक कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन जो इन्वायरमेंटल हैं जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिड है, इनसे बचना जो है ना नामुमकिन ही तकरीबन होता है। तो इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजिक हम इस तरह से उसकी डेवलप करते हैं कि जैसे लेट वैरायटीज़ को हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि उनकी जो राइपनिंग स्टेज है वो मानसून को स्किप कर जाती है, और जब वो राइपनिंग स्टेज अमूमन डिजीज़ जब आती है तो वो जो ही फ्रूट सॉफ्टनेस की तरफ जाता है तो उस टाइम डिजीज़ अटैक करती है। तो जब फ्रूट सॉफ्टनेस की तरफ जाएगा उस टाइम अगर आपका इन्वायरमेंट ह्यूमिड नहीं रहा, ह्यूमिडिटी कम होगी या बारिशें कम हो गई हैं, तो वहाँ पे उस पर फिर डिजीज़ कम आएगी और उसकी क्वालिटी और यील्ड जो है वो अच्छी होगी। तो हमारा ये है कि हम कोशिश करते हैं कि ऐसी वैरायटीज़ को ही हम प्रमोट करें जो कि लेट जिनकी मैच्योरिटी लेट है, जैसे कोराटीना एक लेट मैच्योरिंग वैरायटी है, लेकिन आल तो फिर भी ये किसी हद तक इफेक्ट होती है, फ्रूट ड्रॉपिंग होती है, लेकिन इसका जो बेनिफिट ये है कि इसकी ऑयल क्वालिटी और यील्ड अच्छी है दूसरी वैरायटीज़ की निस्बत। तो इस तरह की हम स्ट्रेटजीज़ डेवलप करते हैं। कुछ जेनेटिकली इम्प्रूव वैरायटीज़ या न्यू वैरायटीज़ जो यहाँ पे लाते हैं उनकी अडॉप्टेबिलिटी स्टडीज़ करते हैं प्रॉपर कि कौन सी वैरायटीज़ जो हैं वो किस एरिया के लिए सूटेबल हैं। तो पठवार में ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान और केपी में ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ का एनवायरनमेंट ज़्यादा सूटेबल है यहाँ की निस्बत। जी। तो सर, कौन से की फैक्टर्स हैं जो ऑलिव ऑयल के फ्लेवर को जो है वो अफेक्ट करते हैं, चेंज होता है वो? ये सारे फैक्टर्स हैं। कुछ तो जेनेटिक फैक्टर्स हैं कि एक जेनेटिकली एक उस क्रॉप के अंदर एबिलिटी होती है कि वो फ्लेवर भी डेवलप उसमें अच्छा होता है और क्वालिटी भी अच्छी डेवलप होती है, लेकिन जो हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी इस पे काफ़ी अफेक्ट करते हैं। जेनेटिकली जो अच्छी वैरायटीज़ हैं क्वालिटी के हवाले से, कोराटीना वन ऑफ द बेस्ट वैरायटी फॉर ऑयल क्वालिटी। अगर फ्लेवर की बात करें तो उसमें कोरोनिकी जो है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, अरोमा उसका बहुत अच्छा है। जो अरबिक्विना वैरायटी है प्रोडक्शन के हवाले से तो बहुत अच्छी वैरायटी है, लेकिन उसका जो ऑयल है वो उस तरह से उसकी वो मतलब कह लें कि एक फ्लैट ऑयल, नॉर्मल ऑयल में उसको कंसिडर करते हैं क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिटी एंड फ्लेवर के हिसाब से।
तो दूसरा जो इसमें बीमारियां हैं जो फंगल है, जब वो राइपनिंग पे जूं जूं राइपनिंग की तरफ आता है, अगर इस पे फंगल डिजीज़ आती हैं तो ये क्वालिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। क्वालिटी की जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं ये बेसिकली प्री हार्वेस्टिंग से लेके पोस्ट हार्वेस्ट और आपकी स्टोरेज तक, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। प्री हार्वेस्ट में डिजीज़ हैं वो ऑयल क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, ऑयल यील्ड को अफेक्ट करते हैं। फिर आपकी हार्वेस्टिंग जो टेक्निक्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए, और फिर उसकी जो प्रोसेसिंग है, जो हमारी एक्सट्रैक्शन यूनिट लगे हुए हैं उनमें प्रॉपर उनके SOPs हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो करके एक्सट्रैक्शन करें तो जो है ना उससे हम जो है ना क्वालिटी को मेंटेन किया जा सकता है। अगर वो प्रॉपर प्रोसीजर्स को हम फॉलो नहीं करेंगे तो क्वालिटी मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमारे यहाँ पे एक इटालियन प्रोजेक्ट ओलिव कल्चर के नाम से चलता रहा है, वो इस चीज़ के ऊपर स्पेशल ट्रेनिंग्स देते रहे हैं, फॉरेन एक्सपर्ट्स आते रहे हैं, हमारे जो ऑपरेटर्स हैं उनको ट्रेनिंग देते रहे हैं, फार्मर को देते रहे हैं कि किस तरह फ्रूट हार्वेस्ट करना है और जल्द अज जल्द कैसे उसको मशीनरी में प्रोसेस करना है, और मशीनरी को ऑपरेट करने के जो सेक्शन यूनिट हैं उसके SOPs क्या हैं कि उसकी जो ऑयल क्वालिटी है वो किसी तरह डिस्टर्ब ना हो। तो उनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इस हवाले से। और उसके बाद जब एक्सट्रैक्शन हो जाती है तो उसकी फौरी जो है वो पैकिंग ज़रूरी है। इसको जितना ये एयर के साथ एक्सपोज होगा ऑक्सीडेशन के, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑयल की ऑक्सीडेशन हो जाती है, क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है अगर इसकी अच्छी पैकिंग नहीं होगी। फिर इसकी जो पैकिंग मटेरियल है वो ग्लास बोतल और कलर बोतल में हम उसको प्रेफर करते हैं। बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए और ऐसी जगह पे स्टोर नहीं करना चाहिए जहाँ पे उसको लाइट जो है वो पहुँच रही है, या वहाँ का टेम्परेचर जो है वो दिन और रात का फ्लक्चुएट कर रहा है, अप डाउन हो रहा है। अगर इस तरह की फ्लक्चुएशन होगी तो उसके अंदर अगर लाइट नहीं भी मिल रही तो उसके अंदर ऑटो ऑक्सीडेशन और इस तरह के प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑयल जल्दी ख़राब हो जाता है। ऑलिव ऑयल की जो है सस्टेनेबल फार्मिंग के कोई सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स या प्रोजेक्ट्स जो अभी तक देखें, ये एक एग्जॉटिक क्रॉप है और किसी भी एग्जॉटिक क्रॉप को जब उसके अपने ओरिजिनल एरिया से निकाल के एक नए एरिया में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसका अडॉप्टिव बिहेवियर चेंज हो जाता है अगर वो इन्वायरमेंट उसके लिए सूटेबल नहीं है। मैंने कोटवार का बताया कि यहाँ पे दो जो है ना, एक स्प्रिंग जो हाई टेम्परेचर और दूसरा मानसून यहाँ पे काफ़ी अफेक्ट करती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हम इन वैरायटीज़ को स्टडी करते हैं इस तरह के इन्वायरमेंट में, तो फिर उनकी अडॉप्टिबिलिटी, उनकी फिनोलॉजिकल स्टेजेस और उस बिहेवियर के जो मतलब डिफरेंट वैरायटीज़ यहाँ पे डिफरेंट तरह से बिहेव करती हैं, तो हम एक स्ट्रेटेजिकली उनकी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो डेवलप करते हैं ताकि ये चीज़ों, इनके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं उनको मिनिमाइज़ करके उनको सक्सेसफुल बनाया जाए। तो पठवार में थोड़ी ये क्रॉप एज ए जस्ट अगर ट्री उगाना है तो ये बहुत ईजी है, लेकिन अगर आपने इसका फ्रूट लेना है तो ये बहुत ट्रिकी है। तो ये इसका जो डिफ़िकल्टी है फ्रूट लेने में, बहुत सारे फार्मर इस प्रॉब्लम से मतलब वो उसको फेस कर रहे हैं। तो उसकी वजह यही है कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स हैं उनके ऊपर काबू पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जिसकी वजह से हमारे इकनॉमिक जो कह लें कि बेनिफिट कम हो जाते हैं, हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है और यील्ड जो है कम होती है। तो इकनॉमिक फिजिबिलिटी के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसका रेज़ किया जाता है, और ये है भी ऐसे ही। अगर इसकी अच्छी तरह से मैनेजमेंट और अच्छी तरह से वैरायटीज़ की सिलेक्शन, प्रॉपर आपकी सॉइल और आपका जो एरिया है उसको प्रॉपर आप पहले सिलेक्ट मतलब उसको स्टडी करके माहिरीन से उसकी विज़िट करवा के उसकी अडॉप्टेबिलिटी और सारी चीज़ें उसके सॉइल टेस्ट करके अगर आप लगाएंगे वैरायटीज़, हम फिर उस हिसाब से बताते हैं कि यहाँ पे कौन सी वैरायटी सूटेबल है और कौन सी नहीं है। अगर पठवार की बात करें कि जो हमारी टॉप एरिया है, क्योंकि अंडुलेटेड एरिया है, कहीं पे टॉप है कहीं पे लो वैलीज़ हैं, तो जो लो वैलीज़ हैं वहाँ विंटर में अमूमन फ्रॉस्ट पॉकेट बनती हैं जो इसको डैमेज करती हैं, जो इसके फ्लोरल बर्ड्स हैं उनको डैमेज कर देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे वो नेक्स्ट ईयर फ्लावरिंग कम होती है। इसी तरह जो वैलीज़ हैं, लो लैंड एरियाज़ हैं, स्ट्रीम्स हैं, उनके दाएं बाएं जो इस तरह की ओलिव प्लांटेशन है वहाँ पे मानसून में भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ फ्रूट ड्रॉपिंग और फंगल डिजीज़ का इन्फेस्टेशन ज़्यादा है। जो टॉप एरियाज़ हैं वहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट इस तरह से हो जाता है कि माइक्रो क्लाइमेट इस तरह से बनता है कि वहाँ फ्रॉस्ट पॉकेट्स भी नहीं बनती, और मानसून में जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो एयर सर्कुलेशन बेहतर होने की वजह से वहाँ पे फंगल डिजीज़ की इन्फेस्टेशन किसी हद तक कम होती है। तो वो कुछ आर्चिड ऐसे हैं कि वहाँ पे प्रोडक्शन कंपैरेटिवली बेहतर है।
बारानी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो है वो और कौन सी क्रॉप्स हैं जिनकी नर्सरी मौजूद है या जिन पे आप काम कर रहे हैं? यहाँ पे बेसिकली हम हार्टिकल्चर, स्पेशली मैं अपनी बात करूँगा कि हार्टिकल्चर क्राफ्ट्स में हम बाकी फ्रूट्स को भी प्रमोट कर रहे हैं जो कि यहाँ के लिए मतलब अच्छे एनवायरनमेंट अच्छा है, सूटेबल हैं वैरायटीज़ यहाँ के लिए। उसमें सिट्रस की हम ऑरेंजेस वैरायटीज़ को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि पठवार में जो पिगमेंटेड ऑरेंजेस हैं उनकी क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी बेहतर और उनका टेस्ट और फ्लेवर काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। उसमें हमारे पास सेंजुलिनो वैरायटी है, पिगमेंटेड ऑरेंजेस की एक वैरायटी है, न्यूली इंट्रोड्यूस हुई है, उसकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। फिर इसके अलावा मोरो ब्लड, वेलेंशिया लेट, ट्रोको और इस तरह की हमारे पास 4-5 वैरायटीज़ हैं ऑरेंजेस की, उनको हम प्रमोट कर रहे हैं। जहाँ तक नर्सरी की बात है, हम इसकी नर्सरी पहले तो नहीं डेवलप करते थे। सरगोदा में हमारा एक इंस्टीट्यूट है, सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो सिट्रस को डील कर रहा था, तो पहले वही इसकी नर्सरी प्रोड्यूस करते थे। क्योंकि यहाँ भी इसका काफ़ी पोटेंशियल है और डिमांड भी है, तो इस साल हमने जो है ना पठवार ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत हमने ऑरेंजेस का और हाई वैल्यू क्राफ्ट्स का जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें दिए हैं, जिसमें हम उसके जो नर्सरी के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो सारे डेवलप कर रहे हैं ताकि हम जो है ना उसकी एक सर्टिफाइड और हेल्दी नर्सरी प्रोड्यूस करें। और नर्सरी के हवाले से हम फिर उसके रूट स्टॉक के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि जो रूट स्टॉक सरगोदा रीजन या उस क्लाइमेट या सॉइल के लिए यूज़ होते हैं, यहाँ की सॉइल उसके हवाले से डिफरेंट है। यहाँ की सॉइल जो है वो अल्कलाइन है, कैल्केरियस है और ज़्यादातर यहाँ पे ड्राउट का जो इफेक्ट रहता है। तो हम उन रूट स्टॉक को प्रमोट कर रहे हैं कि जो इस तरह की सॉइल को टॉलरेट करते हों, और फिर जो ऑरेंजेस वैरायटी हैं स्पेशली उनके लिए उनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी हो और उसकी क्वालिटी और उसका जो यील्ड है उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट जिन रूट स्टॉक का है हम उनको प्रमोट कर रहे हैं और उन्हीं की नर्सरी हम प्रोड्यूस करके आगे फार्मर को देंगे। इसके अलावा पीचीज़ और नेक्टरिन यहाँ पे बहुत अच्छे मतलब इसके एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं, फार्मर लगा भी रहे हैं। पीचीज़ में 2 वैरायटीज़ जो पहले जो हमारे यहाँ पे चल रही थी, लेकिन अभी हम मज़ीद उसका जर्म प्लाज्म कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्टरिन्स की 2-3 वैरायटीज़ जो हैं जो कि अर्ली फ्रूटिंग पे आ जाती हैं। जब कहीं से पीच का फ्रूट मार्केट में नहीं आता तो नेक्टरिन का जो फ्रूट है वो हमारा जल्दी तैयार हो जाता है। उसका टेस्ट, क्वालिटी यहाँ की बहुत अच्छी है। जहाँ तक नर्सरी की बात है तो उसमें अगेन थोड़ा सा में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ हम जो रूट स्टॉक है वो सीडलिंग रूट स्टॉक यूज़ करते हैं। सीडलिंग जो है वो सीड से प्रोड्यूस होता है, तो उसमें वेरिएबिलिटी और सॉइल अडेप्टेबिलिटी और कंपैटिबिलिटी साइन वैरायटीज़ के साथ उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है और वो प्रॉब्लम्स भी आते हैं। वो आर्चर्ड फिर ये जो फार्मर लगाते हैं कि उनके आर्चर्ड जो हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते, उसमें प्रोडक्शन यूनिफॉर्म नहीं होती और उसमें मोर्टेलिटी भी बहुत होती है। 3-4 साल जब वो प्रोडक्शन पे आते हैं तो उस तक जो है ना 30-40% प्लांट जो है वो डाई हो जाते हैं या उनकी क्वालिटी या यील्ड अच्छी नहीं होती। तो इस वाले से हम रूट स्टॉक के ऊपर काम कर रहे हैं कि रूट स्टॉक यूनिफॉर्म होना, एक तो साइन वैरायटी का यूनिफॉर्म होना ज़रूरी है, साथ रूट स्टॉक का भी यूनिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं जो कि पठवार क्लाइमेट के हिसाब से सूटेबल हों, यहाँ पे वेल अडॉप्टेड रूट स्टॉक हो, हम उन रूट स्टॉक को प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा ब्लैकबेरी की कल्टीवेशन यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल है। ये थोड़ी सी कह लें कि ब्लैकबेरी की शेल्फ़ लाइफ कम होने की वजह से उस तरह से अभी मार्केट में या कमर्शियल प्लांटेशन अभी तक नहीं हो सकी, कम है, अभी इसका स्टार्ट है तो जिसकी वजह से मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये एक अच्छी पोटेंशियल क्रॉप है अगर इसकी शेल्फ़ लाइफ पे और बाकी चीज़ों पे काम किया जाए। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि इसकी मार्केट एक्सेसिबिलिटी और वो चीज़ों को वैल्यू चेन को कंप्लीट करें ताकि फार्मर इसमें से अच्छी अर्निंग कमा सकें। कि आप पोठवा रीजन के जो फार्मर्स हैं उनको सिट्रस फ्रूट की कौन सी ऐसी वैरायटीज़ है जो सजेस्ट करना चाहेंगे? सिट्रस की जैसे मैंने बताया कि ऑरेंजेस यहाँ के लिए सूटेबल हैं, ज़्यादा सूटेबल हैं। किन्नू वैरायटीज़ यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, मैंड्रिन कोई भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। जो ऑरेंजेस वैरायटीज़ हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट सेंजुलिनो है,
फिर मोरो है, ट्रोको है, सोलिशियाना है और वेलेंशिया लेट है। वेलेंशिया लेट जो है ये मई में जाके तकरीबन इसका फ्रूट तैयार होता है, तो ये वो टाइम होता है जब आलमोस्ट सिट्रस मार्केट से ख़त्म हो जाता है। तो ये एक पोटेंशियल वैरायटी है यहाँ की, तो हम इन 5 वैरायटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। मीनवाइल हम न्यू जर्मप्लाज्म वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं और कलेक्ट कर रहे हैं और उसकी अडेप्टेबिलिटी स्टडीज़ कर रहे हैं यहाँ पे। बारी इंस्टीट्यूट में सिट्रस फ्रूट हो गया या बेरी, इनकी जो नर्सरी है वो अवेलेबल होगी, और अगर होगी तो वो कब होगी, अगर फार्मर्स जो हैं वो करना चाहें तो? नर्सरी जो हमारे पास अवेलेबल होती है ये हम एंड ऑफ जनवरी, क्योंकि वही प्लांटिंग सीज़न होता है तो उसी में स्टार्ट करते हैं, और ये फिर एंड अप्रैल तक जो है ना वो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर मई और जून थोड़े से टफ़ क्लाइमेट होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो उस दौरान हम कोशिश करते हैं कि पौधे ना दें। फिर मानसून में हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, और ये तकरीबन कह लें कि सितंबर एंड तक हम वो नर्सरी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास लिमिटेड स्टॉक होता है, क्योंकि हमारी अभी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी डेवलप नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कमर्शियल उसकी नर्सरी प्रोडक्शन करें। लेकिन अभी ये जो प्रोजेक्ट आए हैं इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नर्सरी के हवाले से स्पेशली डेवलप हो रहा है, जिसमें हम डिज़ीज़ फ्री प्लांट्स जो है ना वो प्रोड्यूस करेंगे। स्पेशली जो ऑरेंजेस हैं उनके वायरस फ्री प्लांट प्रोड्यूस करेंगे, और नेक्स्ट ईयर या उससे अगले साल तक हम उनको ग्राफ्ट करके तो फिर जो है फार्मर को प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम जो प्रमोट कर रहे हैं नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप है वो फ़िग है। फ़िग भी यहाँ पटवार के लिए काफ़ी मतलब सूटेबल क्रॉप है। ये सेंट्रल पंजाब के लिए भी अच्छी क्रॉप है। तो इसमें हमने कोई 6-7 के करीब वैरायटीज़ इंपोर्ट की थी, जिनकी अडॉप्टेबिलिटी स्टडी हमने कंप्लीट कर ली है, जिसमें 3 वैरायटीज़ जो हैं हम उनको कमर्शियली प्रमोट करते हैं, जो कि फ़्रेश कंजप्शन की वैरायटीज़ हैं। इसके अलावा हम ड्राई फ़िग के ऊपर भी काम कर रहे हैं ताकि उनको भी हम प्रमोट करें और आगे वैल्यू एडिशन उन चीज़ों में जाएं। जो फ्रेश कंजप्शन की वैरायटीज़ हैं उनमें भी हम जो है ना वैल्यू एडिशन और इस तरह के प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। तो फार्मर को हम इनके जो है ना सर्टिफाइड प्लांट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसकी नर्सरी का सेटअप भी जो है हमारे पास मौजूद है। तो उसके हवाले से जो भी वैरायटीज़ हम आगे फार्मर को प्रमोट करते हैं उनके प्लांट यहाँ पे अवेलेबल हैं, और वो प्लांट भी हम जो है वो स्प्रिंग से फरवरी से स्टार्ट करते हैं एंड जनवरी से फिर हम मानसून तक उनको फार्मर को प्रोवाइड करते हैं।